चलिए अब आगे चलते हैं, बहुत सारी खबरें भाई। कल का जो रिक का जो डोज है वो अमेरिका को खतरनाक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे सांप काट लिया अमेरिका को, बिच्छू काट लिया, बल्कि अमेरिका बहुत परेशान है। सुनिए, the road to peace in many ways runs at least partly through New Delhi. It's time for Modi to step up. I have great respect for Modi. I love the Indian people. It was a shame to see Modi getting in bed as the leader of the biggest democracy in the world with the two biggest authoritarian dictators in the world, in Putin and Xi Jinping. That doesn't make any sense. I'm not sure what he's thinking, particularly since India has been in a Cold War and sometimes a hot war with China for decades. So we hope that the Indian leader comes around to seeing that he needs to be with us in Europe and Ukraine and not with Russia on this, and he needs to stop buying the oil. Okay? इतना परेशान है, समझ में नहीं, हक्की बक्की से हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा करें क्या। क्या मोदी क्या कर रहा है, गड़बड़ मोदी कर रहा है। और आपके तो किन लोगों के साथ खड़े हो रहे हो आप लोग, गुंडे लोग हैं वो लोग, अथॉरिटेरियन हिटलर लोग हैं दोनों के दोनों, पुतिन और शी जिनपिंग। और चाइना तो तुम्हारी जमीन खा के बैठा है, ऐसा किया वैसा लड़ाई हुई है तुम्हारी, तो हम देख लेंगे ना, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। हम कौन सा उससे गलवैयाँ करने जा रहे हैं। इन बेड अब बेड में सो गया, बेड में सो गया मोदी भाई साहब, बस नहीं चल रहा, कपड़े फाड़ के नाचने की देर रह गई है बस। हैं साहिल लिप्टन जी आइए, स्वागत है। ठीक है, कमाल है, गजब हालत है। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी है अमेरिका परेशान है, अमेरिका इज रैटल्ड बहुत बुरी तरह। If we are really serious about considering communist China the greatest threat to the United States and our way of life, we need India. It's just a fact. We can't fight life. We need India. We need India. It's just a fact. We can't fight them alone in Asia Pacific. We need the heft of not just Australia, not just our friends in Japan, but also India. So I think this meeting is highlighting a major challenge for the Trump administration. ये मीटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। We need India. It's a fact. Yeah, it's a fact, baby. But your orange man doesn't understand. उसको समझ में नहीं आ रहा संतरे को, हैं? कमाल है। मॉर्निंग स्टार आइए, स्वागत है। कमाल है। तो जो कल तक भारत को आंख दिखा रहे थे, उनका मीडिया भी कह रहा, बोले भाई मामला गड़बड़ हो गया। इनने क्या सोचा था कि दादागिरी गुंडे कर लेंगे और डर जाएगा भारत, हैं? कमाल हो गया, कमाल है। चलिए और आगे सुने एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। If the Chinese, the Russians and the Indians get together in any form of alliance that is economic and around the edges military, there's no way that the Americans can compete in the 21st century. We might as well go home. The entire theme of American history in terms of diplomacy has been to avoid the combination of foreign great powers such that we would not be able to confront them economically or militarily. That is why we got involved in the two world wars. That is why we were cautious in Vietnam. And I'm afraid to say that if there's one takeaway from this, it's that China could not have dreamt of a better moment, both in terms of the visual. For my money, if the Chinese, the Russians and the Indians get together in any alliance that is economic and around the edges military, there's no way that the Americans can compete in the 21st century. We might 21st सेंचुरी में अमेरिका किसी भी हालत में compete नहीं कर पाएगा अगर चाइनीज, रशियन और इंडियन एक हो गए तो। सिंपल, अमेरिका हो गया अलग थलग। अमेरिका ने सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कांड हो जाएगा इसके साथ में। इन्हें लगा कि गुंडे ही कर लेंगे। देखो आज ट्रंप ने जानते हैं कौन सी गलती करी है, याद करो, मैं हमेशा हर बार बोलता हूँ, हिस्ट्री पढ़ा करो। एक नाम था, छोटे कद का आदमी, छोटी मूंछों वाला, एडोल्फ हिटलर। जबरदस्त पराक्रमी आदमी था, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती करी। और वो गलती क्या थी? सबके साथ एक साथ मोर्चा खोल दिया था। और सबके साथ जब एक साथ मोर्चा खोल देते हो ना सर, तो कुत्ते भी खा लेते हैं शेर को फिर। जर्मनी की वो गलती हमेशा हमेशा के लिए जर्मनी को खत्म कर दिया उसने। ठीक है, एडोल्फ हिटलर कहाँ गए पता नहीं चला लोगों को, जबकि ऐसा लगा था पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। सबसे एक साथ पंगा लिया, एक साथ। और यही गलती ट्रंप ने कर दी, सबसे एक साथ पंगा ले लिया, खेल खत्म। आप कितने बड़े तोपची बने रहो, कितने बड़े तोपची बने रहो सर, भूल जाओ आप। डॉलर डिपेंडेंसी बहुत जल्दी खत्म हो रही है, हो ही गई ऑलमोस्ट। रशिया ने मना कर दिया हम बिजनेस करेंगे डॉलर। भारत ऑलरेडी लगभग इस स्थिति में आ गया, सीधे मुंह पे मना नहीं कर रहा, घुमाकर सीधी सीधी बात कर रहा है कि रुपये में डील करेंगे। चाइना ने खुद ने बोल दिया कि भाई हम अपनी युआन में डील करेंगे, आ जाओ मजे कर लो। अब फंस गए बुरी तरह से। तो अब डोनाल्ड ट्रंप बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, और कल तक जो मोदी को गाली दे रहे थे आज पुतिन को गाली दे रहे हैं। सुने जरा। I'm very disappointed in him. He and I always had a great relationship. I'm very disappointed. Thousands of people are dying. They're not Americans that are dying, but they're Russians and they're Ukrainians, and there's thousands, and it's a war that makes no sense. And it would have never started if I were president, and that's what bothers me even more, because the election was totally rigged.
and it's a shame. We'll see what happens, but I'm very disappointed in President Putin. I can say that, and we'll be doing something to help people live. You know, it's not a question of Ukraine. It's how people live. 7,000 people are dying every single week. Soldiers, mostly. But 7,000 people. And if I can help stop that, I think I have an obligation to do it. बाबू सोना थाली भगोने सब बातें छोड़ो, मुद्दे की बात करो तुम। वो उसका क्या करना, वो टेरिफ लगाए, घूम के आ गए, बोले कि 7,000 लोग रोज मर रहे हैं, सारे सोल्जर्स मर रहे हैं, मुझे उनको बचाने का प्रयास करना चाहिए, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है, मैं बचाऊंगा, और पुतिन जो है बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, नहीं मानेगा वो। हाँ, खत्म हो गई बात, खत्म। काय के लिए दिमाग लगा रहे हो खाली पीली में? दादागिरी करके सोच रहा। अच्छा, इनकी दादागिरी गुंडाई क्या थी? क्या रशिया पे प्रेशर डालो कि वो युद्ध खत्म कर ले, वरना हम तुम पे टैरिफ लगाएंगे। भैया क्यों, रशिया हमारा जय खरीद गुलाम है? हम कह देंगे मान लेगा क्या? कमाल के लोग हैं, क्या इनकी सोच है, तो हैरान हूँ देखकर। गुरु जी पेट सब, धन्यवाद भैया नारायण शंकर जी। तो अब क्या करें? वो कल वो ध्यान भटकाने के लिए कर रहे थे ना कुछ। हाँ, तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मोडरो ने डिक्लेयर कर दिया है ही वुड गिव वेपन्स टू एंटायर पॉपुलेशन इफ यूएस अटैक्स। अभी तो कह रहे थे उनके एक्सपर्ट कि हमने वियतनाम में बहुत संभल कर काम किया, नहीं पिट के आए आप वियतनाम से। अब दूसरी बार वेनेजुएला में पिट हो गए बहुत बुरी तरह से, क्योंकि अब उन्होंने कह दिया हम जनता को दे देंगे सारे हथियार। कहाँ तक लड़ोगे? हर घर में हथियार रहेगा, हर घर में रॉकेट लॉन्चर, कहीं किसी के पास कुछ, कहीं किसी के पास लैंड माइन, कहाँ तक लड़ोगे? पूरी जिंदगी निकल जाएगी अमेरिका की। अगर मोडरो ने ये कर दिया, अगर ये कर दिया, असंभव हो जाएगा इसको जीतना वेनेजुएला। इट इज इम्पॉसिबल। अगर वहाँ के बंदे नेशनलिस्ट हुए तो आप ये समझ लेना खत्म हो जाएगा अमेरिका वेनेजुएला से लड़ते लड़ते, खत्म हो जाएगा। इट इज इम्पॉसिबल। जब इतने मास के, भाई वियतनाम में क्या हुआ था? आम जनता लड़ने लगी थी, आपको पता ही नहीं गोली कहाँ से आनी है, कोई गोली भी नहीं मार रहे, वो तो बैम्बू के तीरों से मारा उन्होंने, ठकाक, काय का बारूद। हाँ, खेल खत्म, मार डाला इनको। तो ये स्थिति इनकी रही है ना, पिट के आए थे, अभी फिर से वही स्थिति है। पता नहीं अमेरिका को, मुझे लग रहा है ये देखो, एक अपने बड़ी पार्टी का अधपगला बच्चा वहाँ से सलाह लेता है। असल में प्रॉब्लम वहाँ के सलाहकारों में है, वहाँ की सलाहकारी गलत है। ये भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, ट्रम्प भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। भगवान ही मालिक है क्या होगा इन सबका। चलिए, पर पुतिन साहब को इम्प्रेस करने, आहा, ये भी तो आए हैं, सुने। Your Excellency, I'd like to also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act, I think, in the region. I know, and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. In that, I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely. बॉडी लैंग्वेज देखिए दोनों की, इधर देखिए और इधर देखिए, कितना फर्क है। मालिक और गुलाम जैसा लग रहा है बिल्कुल एकदम देखकर। पुतिन का बॉडी लैंग्वेज ज़बरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का पुतिन से भी ज़बरदस्त बॉडी लैंग्वेज है। आइए, और भी बहुत कुछ बातें हुई, कुछ उसको भी देख ले। देखो भाई, अपना अपना पेट पकड़ के बैठना और पीठ पकड़ के बैठना, गिर मत पड़ना हंसी के मारे। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ उठाया है, कुछ ऐसा आप हाथ उठा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ उठाया है, कुछ ऐसा आप हाथ उठा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना और बाय गॉड, ये मीम बनाने वाला तुम लोग को पाप लगेगा, पाप। एआई का इतना दुरुपयोग या सदुपयोग जितना भारत में हो रहा कहीं नहीं हो रहा, कहीं नहीं। और तो और लो भैया, छोटे वाले शरीफ साहब भी बना दिए। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ उठाया है, कुछ ऐसा आप हाथ उठा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े।
और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ उठाया है, कुछ ऐसा आप हाथ उठा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े। और मैंने यही कहा कि आप सोच रहे होंगे कि मैं मांगने आया हूं, मैं मांगने नहीं आया, कटोरा हाथ में है मेरे, मैं मांगने नहीं आया हूं। बहुत यार बहुत गजब है भाई। इंडिया के जो क्रिएटर्स है वो खतरनाक है, खतरनाक क्या गजब दिमाग चलता है। पर खैर दिमाग तो एक और का चल रहा है, और इतना खतरनाक चल रहा है कि आप बेहोश हो जाएंगे। भारत ने पानी बंद कर दिया था, लोग सड़कों पे आ गए थे, पाकिस्तान में सड़कों पे आ गए थे, बोले पानी चाहिए। अब पानी है। अब कि आप ये पानी जो है कि कुछ स्टोर कर लेना, जो लोग जो है सड़क ब्लॉक करके बैठे हुए थे, ले जाए अपने घर जो है सारी का सारा पानी जो है वहाँ स्टोर कर लें, कहीं किसी वहाँ में डाल लें, किसी टब में डाल लें वहाँ पे। ये पानी जो है ये पानी है, इसको हमें एक ब्लेसिंग की जो है वो शक्ल देनी चाहिए स्टोर करके। उसके लिए बड़े डैम जो हो सकता है 10 साल लगे, वो भी बनने चाहिए। तो पानी आ गया तो जो लोग रास्ते में बैठे थे वो लोग ले जाएं आपने भर के, और टब वगैरह में हमाम में डाल लें पानी। इसको हमें ब्लेसिंग की तरह लेना चाहिए। पानी को, बाढ़ के पानी को टब में भर लो। अबे मदरसे, तेरी ऐसी की तैसी कमबख्त, मैंने कहाँ से आया भाई? बाढ़ के पानी को तो टब में भरेगा बाल्टी में, दिमाग से पैदल, गजब आदमी। और कहता है गड्ढे खोद के उसमें भर लो, डैम बनने में तो 10 साल लगेंगे, तो उससे पहले हम आप बाहर लेते हैं, टब में बाहर लो जी, हम आम में बाहर लो। अरे बाप रे बाप, क्या गजब है साहब, भगवान ही मालिक है। सही बनते हैं इनकी में। आप समझ रहे होंगे कि मैं मांगने आऊँ, मैं मांगने नहीं आया हूँ, मैं सही, एकदम सही है। चल भाई, आप लोग भी समझ रहे होंगे मैं मांगने आऊँ, मैं मांगने नहीं आऊँ, मैं बहुत मेहनत करके, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, हमारी पूरी कौम भी बहुत मेहनत करेगी, हम कल भी बहुत मेहनत करेंगे। आप QR कोड को स्कैन कर लो बस एक बार, मैं मांगने नहीं आऊँ आपसे, और QR कोड को स्कैन करके ना आप अपना पेमेंट कर देना बस, और नाम और नंबर साथ में लिख देना जी। बाबू जी क्या ना, पता नहीं चलेगा कि रशिया से आया, चाइना से आया, कहाँ से आया। इतने सारे जो है ना, इन सबको फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो चैनल है इससे ध्यान से जुड़ जाना आप। इसमें कुछ मांगने नहीं है, मांगने का नहीं है, बहुत मेहनत करेंगे हम इधर पे हैं। और पेटीएम और पेपाल वाला बटन भी दबा देना आप। गजब है, गजब, कमाल आदमी है। क्या बनाया भाई बंदों ने, नहीं खतरनाक ढंग से बनाया, खतरनाक, मज़ा आ गया। और आवाज़ भी इतनी मैच करिए परफेक्ट एकदम। एक बार को तो वो घबरा जाएंगे, उनके घर वाले नहीं मानेंगे, बोले बोला होगा इसने ऐसा, इतनी आवाज़ मैच कर रही है। चलो आइए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री